Hello and good morning, my dear student. Today we are going to start your class 8 SST. Dear student, as you know that this is your first class, I mean to say that today we are going to start your class 8 SST. So, first I want to introduce about your book and syllabus, and also we will try to understand the chapters which is given in our book. Dear student, before start your SST portion, I would like to tell you that you have to read in class 8 SST three books. First book, that is Social and Political Life. Third, Social and Political Life. What we read in this book, Social and Political Life, textbook for class 8. In this book, there are 10 chapters, and my dear student, the whole book divided into 5 units. The 5 unit, every unit have two chapters, like unit first, Indian Constitution and Secularism. The Indian Constitution and Secularism in this portion, this is the very important things that you have to understand, you have to know. I will teach you about the some specific feature of the Indian Constitution. So, unit first, the Indian Constitution and Secularism. Chapter 1, the Indian Constitution, and chapter 2, the understanding secularism. In the chapter first, we will try to understand that what is the importance of secularism. We will try to understand about that the importance of constitutions. Constitutions का क्या महत्व है, किसी देश के लिए संविधान क्यों बने और संविधान का क्या उपयोगिता है, संविधान का क्या आधारभूत संरचना है, संविधान कैसे बना और संविधान हमारे देश के लिए कितना आवश्यक है, या सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं, एक लोकतांत्रिक देश के लिए या एक किसी भी समाजवादी देश के लिए भी, या किसी भी देश के व्यवस्था के नियामक के रूप में संविधान की क्या भूमिका है, ये जानने के लिए सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट में इसके बारे में स्टडी करेंगे. I hope you are getting understand that what I am telling you. What I want to understand, what I want to teach you, that why the Indian Constitution is important, why the Constitution is important for everyone. Because the Constitutions give us the information. I mean to say that the Constitutions give us the actual वो नियम, वो व्यवस्था जो जिससे देश चले, ये संविधान का महत्वपूर्ण पार्ट है. माय डियर, इन द फर्स्ट चैप्टर वी हैव टू स्टडी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इन दिस चैप्टर वी विल रीड द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. Suppose I set an example. On the basis of that, you can easily understand that important of the constitution, important of the rules. Suppose we are going to begin with football, a game many of you have probably heard of, the football game, or even played, as the name suggested, that the game that involves the players' feet according to the rules of football. If the ball touches the arm of any players, except the goalkeeper, then this is considered a foul. So if players start holding the football in this hand and passing it around, then they are not playing football anymore. Similarly, other games such as hockey or cricket,
also have rules according to which they are played. Each of these rules help define the game and help us to distinguish one game from another. As these are the fundamental to the game, we can also call the constitutive rules of the games. Like these games, a society also has the constitutive rules that makes it that make it what it is, the differentiated from other kinds of societies. In the large society in which different communities of the people live together, these rules are formulated through the constitution. And my dear student, what I am telling you, these examples, what I am telling you, that the games, because it is very easy to teach you that what is the meaning of constitution. Suppose you are playing a game, some rules of the game, you are all aware of the rules of the game which you play with your friends. तो जो नियम बने, जो कानून बने, इनके खेल के नियमों के बाहर जाके कोई भी प्लेयर गेम नहीं खेलता. अगर ऐसा कोई खेलता है तो उसे फाउल माना जाता है. ठीक वैसे ही हमारे समाज में भी संविधान का वही रोल है. संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात के लिए क्या करता है, हेल्प करता है. और कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स serve as a set of rules and the principle that all person in country can agree upon as the basis of the way in which they want to country to be governed. I hope कि आपको ये बातें आसानी से समझ में आ रही कि संविधान एक ऐसी व्यवस्था है, संविधान एक ऐसा ढांचा है जो पूरे देश को बांध के रखता है. भारत के नागरिकों के द्वारा स्वीकार किया गया संविधान. जैसे आपने प्रिम्बल पढ़ा होगा आपकी एनसीईआरटी के बुक में, हर जगह क्या दिखाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिम्बल. हमने इसके अलावा हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन में, कि किस तरीके से नेपाल में बदलाव आए, किस तरीके से वहाँ संविधान बना और किस तरीके से वहाँ के जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर्स था वो चेंज हुआ. सेकेंड पार्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म. माय डियर, सेकुलरिज्म, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. सेकुलरिज्म इज द स्पेशल क्वालिटी ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सेकुलरिज्म इज द, एक ऐसे समझिए कि सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा शब्द है जो भारत के संस्कृति के लिए, भारत के संविधान को एक नया स्वरूप देता है. भारतीय संस्कृति के लिए सेकुलरिज्म का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि शरीर के लिए प्राण है. क्यों? वाई? माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट द सेकुलरिज्म इज इंपॉर्टेंट सेम एज the soul of human body. Why? Because कि जिस तरीके से शरीर में आत्मा ना हो तो शरीर नहीं चल सकती, उस तरीके से यदि भारत एक सेकुलरिज्म कंट्री के रूप में ना होता, ना बनाया जाता, तो शायद आज भारत का विकास इतना नहीं होता जितना आज भारत विकास के पथ पे बढ़ा है. तो मेरे कहने का सेंस इतना ही है कि संविधान का एक प्रमुख गुण है सेकुलरिज्म. तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट था. सेकेंड यूनिट जो हमें पढ़ना है, सेकेंड यूनिट में फिर 2 चैप्टर हैं, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉ, दैट इज द यूनिट 2. इन यूनिट 2 द 2 चैप्टर्स, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट एंड अंडरस्टैंडिंग लॉ. दैट्स व्हाई द यूनिट 2 नेम इज पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉ. तो माय डियर, पार्लियामेंट में पार्लियामेंट की संरचना, फीचर ऑफ आवर पार्लियामेंट, पार्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट, ये हमें जानना है. जब भी हम बात करते हैं अपने डेमोक्रेटिक कंट्री की तो हमें बात करनी पड़ती है पार्लियामेंट की.
पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हम दो तरह की चीज़ों को पढ़ेंगे, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा। हम ये भी जानेंगे यहाँ पे कि हमारे इस संसद का, हमारे इस पार्लियामेंट का जो दो सदन है, जो दो हाउस हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, अपर हाउस, लोकसभा को लोअर हाउस। राज्यसभा में रेड कारपेट बिछी होती है और लोकसभा में ग्रीन कारपेट बिछी होती है। दैट इज अ वेरी genuine differentiation between the Lok Sabha and Rajya Sabha. My dear student, when I was visited the parliament, when I noticed the carpet of the Lok Sabha and Rajya Sabha, that is red and that was red and that was green. I asked my friend who is security officer of parliament, who told me that the green carpet indicate the root level. The roots, I mean to say that the member of parliament who elected for Lok Sabha, they come from direct election. But the member of Rajya Sabha who elected the indirect, I mean to say that कि वो जो लोकसभा में चुन के आते हैं वो सीधे जनता के द्वारा चुन के आते हैं, वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जो राज्यसभा में चुने जाते हैं वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते हैं, मतलब लोकसभा में जो चुने गए लोग हैं, जो विधानसभा में चुने गए जो लोग हैं स्टेट असेंबली में, उनके द्वारा दिए गए वोटों के आधार पर राज्यसभा का चयन होता है। तो इसीलिए उसको उच्च सदन बोला जाता है, इसीलिए वो। तो हम इन चीज़ों को भी पढ़ेंगे। यूनिट 3 हमारा है द जुडिशरी। जुडिशरी क्यों इंपॉर्टेंट है? Judiciary, I mean to say that Unit 3 also divided into two parts, the judiciary and understanding our criminal justice system. So first we have to understand what is the meaning of judiciary. Judiciary क्या है और judiciary का मतलब क्या है, इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और judiciary क्यों एक सेपरेट बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए, और क्या जुडिशरी को एक फ्री बॉडी के रूप में रखना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में हम जुडिशरी में पढ़ेंगे। और अंडरस्टैंडिंग और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से जुडिशरी फंक्शन करती है, किस तरीके से जुडिशरी काम करती है। तो माय डियर, यहाँ पे हमारे यूनिट 3 में जुडिशरी को पढ़ते हुए हम लोग कानून कैसे बनता है और न्यायालय कैसे अपने को एक्टिव रखता है, न्यायालय कैसे फंक्शन करता है, इन चीज़ों के बारे में हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। यूनिट 4 हमारा सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड। सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड ये जो यूनिट था लास्ट ईयर पैंडेमिक के कारण डिलीट कर दिया गया था, लेकिन इस बार इसको रखा गया है। अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन एंड कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। इन दिस टॉपिक व्हाट वी रीड, व्हाट वी स्टडी, हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ते हैं इसमें, इस चैप्टर में। माय डियर स्टूडेंट, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्जिनलाइजेशन चैप्टर, द कंडीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल। वी आल्सो try to understand the exploitation which was done by our society against our scheduled caste and scheduled tribes people. Even they were also the citizen of India, but they were not so developed. It is very difficult for them to join the mainstream of the society. संविधान की मेन शाखा में आना उनके लिए एक बड़ी समस्या थी। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया,
जुड़ा। तो माय डियर, सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलरिज्म, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉ, द जुडिशरी, और हमारा जो चौथा यूनिट है मार्जिनलाइजेशन, सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइज्ड, इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सोसाइटी के बारे में हम ध्यान देंगे। यूनिट 5 हमारा है पब्लिक फैसिलिटीज, लॉ एंड सोशल जस्टिस। पब्लिक फैसिलिटीज क्या है, उनकी सुविधाएं क्या है, इन चीज़ों के बारे में हम विस्तार से देखेंगे और गवर्नमेंट के रोल को पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लॉ एंड सोशल जस्टिस, कानून और उसका क्या महत्व है, इन चीज़ों को भी हम इसमें देखेंगे। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका जो सिविक्स का पोर्शन था, सिविक्स के चैप्टर थे, उनके बारे में हम लोगों ने थॉरली जाना। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रॉपरली रन करती है। हम सिविक्स में इन चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। इवन दिस इज योर, आई मीन टू से दैट दिस इज योर क्लास 8, आई मीन टू से दैट कि आप ये उस क्लास में हैं जहाँ पे आप बहुत आगे भी नहीं हैं और बहुत पीछे भी नहीं हैं, अभी आप मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सीबीएसई ने आपको ये बुक फ्रेम किया, इस चैप्टर फ्रेम किया, इन पॉइंट्स को रखा जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड कि इन चीज़ों के आधार पर। अब आइए सेकेंड बुक पे बात करते हैं। आपका सेकेंड बुक है द सोशल रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। दिस इज योर सेकेंड बुक, द सोशल रिसोर्स एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, सोशल साइंस, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसके पहले जो बुक थी सिविक्स की, वो ये बुक थी। अगर आप देखें तो सोशल, क्या लिखा हुआ है आप देखिए, सोशल एंड द पॉलिटिकल यूनिट थर्ड, लाइफ, सोशल एंड द पॉलिटिकल लाइफ थर्ड। तो ये आपका सिविक्स की बुक है और इस सिविक्स की बुक में कई सारे चैप्टर्स हैं जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, 5 यूनिट में है। हमने सेकेंड बुक आपको दिखाया, ये आपकी सेकेंड बुक है जो आपके बुक में चलेगी। ये है आपका सोशल साइंस का सेकेंड बुक, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट बुक बेसिकली ज्योग्राफी बेस्ड है। ज्योग्राफी, ऐसे अगर सीधी सवालों में कहें तो पहली बुक हो गई आपकी सिविक्स की, ये दूसरी पार्ट हो गई आपकी ज्योग्राफी की, जो ज्योग्राफी का नाम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट बुक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आइए इनके सिलेबस को देख लेते हैं, इनके टॉपिक को देख लेते हैं, इनके चैप्टर्स को देख लेते हैं। तो इस जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आपका सेकेंड पार्ट है एसएसटी का, इसमें कुल 6 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। वी हैव टू स्टडी द 6 चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्स। रिसोर्स में हम जानने का प्रयास करेंगे कि टाइप ऑफ रिसोर्स क्या है, मीनिंग रिसोर्स की क्या है, रिसोर्स के कितने प्रकार हैं, और फिर रिसोर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, और फिर किस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करेंगे, कंजर्विंग द नेचुरल रिसोर्स। तो ये जो चैप्टर है थोड़ा छोटा है, लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर माय डियर स्टूडेंट। फर्स्ट व्हेन यू विल अंडरस्टैंड दैट द मीनिंग ऑफ रिसोर्स and their importance for our life, for the human beings, then you have to also conserve the resource. Suppose कि आप अपने घर में बैठते हैं, पंखा चला देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में बिजली जला देते हैं, बल्ब जला देते हैं, तो बिजली भी जल गई, फैन भी चल दिया, और फिर आप घर में बाहर चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी नष्ट होती है, रिसोर्स को वेस्ट करते हैं आप। तो रिसोर्स वेस्ट मतलब आपके फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक ऐसे ही जब हम कंजर्विंग रिसोर्स की बात करेंगे तो कंजर्विंग रिसोर्स को समझने का प्रयास करेंगे। आई मीन टू से दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्विंग रिसोर्स, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन।
balancing the need to use resource and also conserve them for the future is called the sustainable development. तो दो शब्द यहाँ पे, एक कंजर्विंग रिसोर्स, आई मीन टू से दैट कि आपको ये जानना पड़ेगा कि रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब क्या है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट समावेशी विकास का मतलब क्या है, इन चीज़ों को. देयर आर मेनी वेज ऑफ द कंजर्विंग रिसोर्स. ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग कंजम्पशन, recycling and reusing things. Ultimately, that makes a difference because all our lives are linked. But here, आप इन चीज़ों को आसानी से समझ रहे होंगे जिसको मैं बताना चाहता हूँ. किस तरीके से आपने देखा होगा कि कनेक्शंस जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं. आपको फ्यूचर के लिए किस तरीके से रिसोर्स को कंजर्व करना है. मेरे कहने का सेंस इतना ही है माय डियर कि रिसोर्स संसाधन क्या है. संसाधन प्रकृति प्रदत्त वो सारी चीजें जो हमें निःशुल्क उपहार स्वरूप प्राप्त हुई हैं, रिसोर्स कहलाती हैं, संसाधन कहलाती हैं. प्रकृति प्रदत्त मतलब नेचुरल गिफ्ट, जो नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है. तो नेचर ने जो गिफ्ट दिया है वो सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी हो, जो हमें फ्री में मिला है, मुफ्त मिली है, गिफ्ट के रूप में मिली है, और जिसके लिए हमारा क्या है, जिसके लिए हम हमारे लिए उसकी वैल्यू है. तो ये तो हमारा रिसोर्स है. इसके अलावा और से चैप्टर हैं जैसे लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स. ये आपका सेकेंड चैप्टर है. तो जितने वर्ड हैं इसमें देखिए, लैंड, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग ऑफ लैंड, यूज ऑफ लैंड, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड एंड हाउ कैन वी यूटिलाइज द लैंड. आपने देखा होगा कि आपने सुना भी होगा कि जो राजस्थान था, कभी वहाँ पे हरे भरे बड़े वन थे, फॉरेस्ट था, लेकिन आज राजस्थान में फॉरेस्ट खत्म हो गए. आज वहाँ पे मरुस्थल है, डिजर्ट है. क्यों इतना फैला, कौन था इसके पीछे, क्या कारण थे इसके पीछे? ओवर यूजेस ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, दैट वाज द मेन कॉजेस. डिफॉरेस्टेशन also the main causes. Day by day, what we observe, if you will observe surrounding you, then you will find that day by day we are making the forest of concrete, not the forest of natural vegetation. We make, हम बनाते जा रहे हैं, we are making day by day the forest of concretes. घर बनते जा रहे हैं बड़ी संख्या में. लोग जंगलों को काट के, जनसंख्या, एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम फॉर द होल वर्ल्ड. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन वर्ल्ड. डे बाय डे दैट पॉपुलेशन इज ग्रोइंग अप, बढ़ रही है. और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ जाएगी, हमारे यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, हम नेचुरल रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट करेंगे. ऐसे समझिए कि जब लोग ज़्यादा होंगे तो जंगल कटेंगे, जब जंगल कटेंगे तो नेचुरल वेजिटेशंस के नष्ट होने से इन्वायरमेंट खराब होगा. एंड देन रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट इज टोटली अगेंस्ट द ह्यूमन बीइंग्स. मानव समाज के लिए पूरा का पूरा रिजल्ट. अब चैप्टर थर्ड है हमारा मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स. दैट इज आल्सो कनेक्टेड दैट. तो चैप्टर सेकेंड एंड चैप्टर थर्ड इज इवन इन योर बुक देयर आर 2 चैप्टर्स, बट अगर आप देखेंगे तो सारे दोनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है. चैप्टर 2 में आप नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे, वाटर के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वाटर, वाटर पॉल्यूशन, नेचुरल वेजिटेशन, टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस, यूज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस.
एंड वाइल्ड रिसोर्स, वाइल्ड लाइफ एंड रिसोर्सेज। वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों का संसार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन चीज़ों के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। चैप्टर 4 है आपका एग्रीकल्चर। दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। व्हाई? बिकॉज इन दिस चैप्टर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, जूमिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ओके, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के विभिन्न प्रकारों को हम जानेंगे। और चैप्टर 5 आपका है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में रोल ऑफ इंडस्ट्रीज इन द इंडियन इकोनॉमी, रोल ऑफ इंडस्ट्री इन फॉर आवर इकोनॉमिक सिस्टम, हमारे आर्थिक व्यवस्था के लिए इंडस्ट्री का क्या योगदान, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री फॉर आवर इकोनॉमी। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड किस तरीके से ये हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इन चीज़ों को भी हम जानेंगे। और चैप्टर 6 है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स, अभी हमने बात की आपसे नेचुरल रिसोर्स की, तो नेचुरल रिसोर्स क्या है और नेचुरल रिसोर्स के बाद ह्यूमन रिसोर्स क्या है, इन दोनों चीज़ों को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में हम लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल रिसोर्स, वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। चैप्टर 1 है हमारा रिसोर्स और चैप्टर 6 है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। तो चैप्टर 1 में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स, टाइप ऑफ रिसोर्स, यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। और चैप्टर 6 में हम जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स। सपोज नाउअडे पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज इन वेरी ह्यूज अमाउंट, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, डे बाय डे जो जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और क्या जनसंख्या का बढ़ना किसी देश की सिर्फ लायबिलिटी है? क्या हम पॉपुलेशन को लायबिलिटी की जगह रिसोर्स के रूप में यूज नहीं कर सकते? और यदि हमें पॉपुलेशन को रिसोर्स बनाना है तो हमें क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेंगी, किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? I mean to say that the population, no doubt to say that nowadays the population is the major problem for whole world. Every country, I mean to say that not every, I cannot use every country, I use the worst country, I mean to say that where the population is very high amount, like India, like Brazil, like Indonesia, like China. So such type of country, they face the population एक्सप्लोजन्स, इस तरह की समस्या से इन फ्यूचर में वो फेस करेंगे। तो क्या हम पॉपुलेशन को लाइबिलिटी मान के चलें? और क्या पॉपुलेशन लाइबिलिटी है? पॉपुलेशन किस तरीके से रिसोर्स बनेगी? और पॉपुलेशन को रिसोर्स बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? तो इनको समझना जरूरी है। तो माय डियर स्टूडेंट, हम चैप्टर 6 में ह्यूमन रिसोर्स में इन सारी चीजों को देखेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, चैप्टर 1 रिसोर्स, चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, चैप्टर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स, चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज एंड चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्स। ये तो चैप्टर्स थे आपके सेकेंड बुक के। ये है आपका सेकेंड बुक। चैप्टर का नाम मैं फिर बता दे रहा हूँ, ये बुक है आपकी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो ये आपकी 2 बुक हुई। हम आपके थर्ड बुक जो हिस्ट्री की पोर्शंस है, इस पे हम बातें करेंगे, ढेर सारी चर्चा करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें कुल कितने चैप्टर्स हैं। लेकिन आज के लिए हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे देखेंगे, बाकी चीज़ों पे हम कल विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग बुक ले लीजिए, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू परचेज द बुक, डोंट यूज ई बुक, बिकॉज ये आप मोबाइल में अपने ई बुक रख लेते हैं और आप उस बुक का प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते, किताबों को ठीक से नहीं पढ़ पाते। तो सबसे ज़रूरी है
कि आपको दुकान से नई बुक परचेज करना. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू हैव टू परचेज द न्यू बुक्स. बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अगर बुक होगी तभी आप पढ़ाई करेंगे. विदाउट बुक इट इज़, आई थिंक इट इज़ difficult for you to understand the actual and the, I mean to say that कि what the given in your book, it is difficult. आप मोबाइल जैसे चलाते हैं आप डाइवर्ट हो जाते हैं. आप मोबाइल चलाएगा व्हाट्सअप या जो फेसबुक इंस्टाग्राम इन चीज़ों में बिजी हो जाते हैं. तो वो चीज़ें जो बुक में है, जो हार्ड कापी जो मेन बुक है उसको पढ़ने में और जो मोबाइल से बुक पढ़ने में, दोनों में बड़ा डिफरेंसेस है. तो माय डियर, आई होप यू आर गेटिंग. आप नई बुक लीजिए, पढ़िए. आज के लिए इतना ही. फिर मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में और आपके थर्ड बुक पे बातें करेंगे. गुड बाय एंड टेक केयर.